Hi everyone, this is Zorez Iqbal and you're watching Kafir's Corner. So the topic of today's video is the punctuation, how to use it correctly to get the marks which are very valuable if you see it from the perspective of a CSS Prezi paper. So as far as my opinion is concerned, I think these marks are there for you to grab. Okay, this is not a very, I would say, complicated skill. You can develop it with a little bit of practice at home. So this is a skill which will be very useful for you if you include it in your repertoire or in your arsenal of the skills, I would say. So without further ado, why not start the video. Now guys, before I start, there is a question often that is raised: what is the difference between the punctuation marks and the punctuation conventions? Okay, punctuation conventions give a writer a wider kind of choice. उसमें सिम्बल्स आ जाते हैं, उसमें और तरह की नंबर स्कीम्स आ जाती हैं, उसमें कैरेक्टर्स आ जाते हैं कि उनको आपने अपनी राइटिंग में इनकलकेट कैसे करना है. वेयर एज जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं, दैट आर टू बी फॉलोड एट ऑल कॉस्ट. these are the actual rules that you have to follow. why there are so many rules for the punctuation? उसकी एक वजह है. उसकी वजह ये है कि when you are speaking, I would say, someone with face to face, तो आप अपनी you use your tone of voice, you use the pauses, you use your pitch of your voice to convey a certain kind of message. इमोशनल है, सीरियस कन्वर्सेशन हो गया, प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल कन्वर्सेशन हो गया, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी वॉइस को कि आप किस तरह का अपना मैसेज उसको कन्वे करना चाहते हैं. लेकिन राइटिंग्स में ऐसा नहीं होता. राइटिंग में आपने ये अपनी जो है टोन को, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, कोई वर्ड ऐसे जिस पे आप एम्फसाइज़ करना चाहते हैं, जिसको आप ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहते हैं, जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको यूज़ होगी पंक्चुएशन मार्क्स की. सो दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड पंक्चुएशन. दैट इज़ वाई देयर इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पंक्चुएशन इन द CSS Prezi पेपर एज वेल. सो लकीली कि जो CSS में पंक्चुएशन आती है वो more often than not, it is mostly a dialogue, a conversation between two people. Either it is some kind of a robbery or something like that, or a conversation between two people. तो उसमें ये होता है कि you just have to place, I would say, you just only have to use 5 to 6 marks out of the 14, which is the total number of punctuation marks there are. By the way, do you know all of those punctuation marks by heart? Well, if you don't, here is a list. Okay, so you do not have to master all of these in order to get the 5 marks in the CSS Prezi paper. आपको मोस्टली पता होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन मार्क की प्लेसमेंट का पता होना चाहिए, कोटेशन मार्क्स का पता होना चाहिए, एक्सक्लेमेशन पॉइंट का पता होना चाहिए, आपको पॉइंट कह रहा हूँ, मार्क का पता होना चाहिए. उसके बाद कॉमास आर वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमास की जो यूज़ है ना, उसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं. वो आपको पता होना चाहिए किस जगह प्लेस करते हैं, किस जगह नहीं. डोंट वरी, अगर अभी तक नहीं पता तो होप till the end of this video you learn something from this and be able to apply those skills. So without further ado, why not start with the 14 marks there are for punctuation. Why not start with all of those? Okay, starting off with the capitalization rule. कैपिटलाइजेशन रूल्स एवरी पर्सन नोज़ कि आपने जो सेंटेंस स्टार्ट करना है उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो आपने कैपिटल करना है. उसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर नाउन यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन से मुराद है अगर आप किसी बुक का टाइटल यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने उसका फर्स्ट जो इनिशियल लेटर है वो कैपिटल होगा. उसके अलावा आपके पास जो होगा, क्या कहते हैं, पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है. The proper definition it means it applies to all of the proper nouns that are given. So कैपिटलाइजेशन का ये रूल है. इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कैपिटलाइजेशन में अक्सर बंदे ये गलती करते हैं कि जब डायरेक्ट नरेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कोटेशन मार्क जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें अक्सर फर्स्ट वर्ड को कैपिटल कर देते हैं. वो हर दफ़ा कैपिटल करना ज़रूरी नहीं होता. समटाइम्स देयर आर केसेस वेयर यू डू नॉट हैव टू कैपिटलाइज इट. ओके, वो मैं बाद में जाके एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों के साथ. तो ये था कैपिटलाइजेशन करूँ. उसके बाद आए थे पीरियड और फुल स्टॉप. फुल स्टॉप है कि वो आपको इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ अ सर्टेन सेंटेंस, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज, और इट इंडिकेट्स एनी काइंड ऑफ शॉर्ट सेंटेंस दैट यू आर राइटिंग. इसके अलावा आप फुल स्टॉप और पीरियड की यूज़ कर सकते हैं कि किसी
नेम इनिशियल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं आप कि A.G. Dyer और समथिंग लाइक दैट, you have to put the period before the two initials A and G. Okay, so this was the period, this was the second one. Now third one is the ellipsis. Ellipsis is a sometime ellipse, it indicates some kind of omission. Okay, some kind of omission that you have left out certain words because they are not very important for the kind of writing that you are doing. For example, अगर आप किसी बंदे की स्पीच है, कोई आपने सुनी है और उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे, यू कैन नॉट पुट ऑल ऑफ द स्पीच इन द पेपर. तो जब डेमोक्रेटिक आर्गूमेंट आएगा, आर्गूमेंट आपने करना होगा, तो उससे पहले वाली जो होगी स्पीच को, उसको आपने छोड़ना होगा. उसके लिए आप डॉट यूज़ करेंगे. अगर उसके डेमोक्रेटिक वैल्यू के टॉपिक को स्टार्ट करने के बाद दोबारा जो ऑरेटर है, जो स्पीकर है, उसने टॉपिक चेंज किया, उसको फिर आपने वेट करना, तो आप 3 डैशेस यूज़ करेंगे. तो ये चीज़ है एलिप्सिस. ये बहुत हेल्पफुल होता है. इसमें ये होता है कि आपने अगर रीडिंग की है, आपने रिकमेंडेड बुक्स पढ़ी हैं CSS के लिए, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा कि वेन एवर यू वांट टू राइट द एंड एक्सेप्ट फ्रॉम द सम काइंड ऑफ अ बुक, सम काइंड ऑफ रेलिवेंट बुक, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होती है आपको एलिप्सिस. उसके बाद आपके पास आ जाती हैं डैशेस आ जाती हैं. डैशेस तो एलिप्सिस को ही कहते हैं. डैशेस कह रहा था, स्लैशेस होती हैं कि उसमें आप स्लैशेस को यूज़ करते हैं. इट इज़ रियली फ्राउंड अपॉन नाउ डेज बाय द प्योरिस्ट हैं कि जो कहते हैं कि आपने रूल्स को जो है ना डिस्टो फॉलो करना ही करना, 100% फॉलोइंग इज़ टू बी डन. वो लोग कहते हैं कि ये इसका यूज़ अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इट इज़ ऑब्सोलीट. लेकिन समटाइम्स इट इज़ वेरी यूज़फुल, लाइक इफ़ यू वांट टू पुट अ डेट इनटू योर राइटिंग, so you will write the date, then the month, then the year, and you will use a slash in between those. इसमें एक ये यूज़ है. Another use for the slashes is whenever you want to write a poetry. अगर पोइट्री आपको लग रहा है कि रेलिवेंट है और आपके आर्गूमेंट में यूज़ हो सकती है, तो उसके लिए भी आप पोइट्री की जब एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन लिखने के लिए आप स्लैश यूज़ करेंगे. तो इस तरह आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं. अब आ जाता है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क तो ऑब्वियस है कि आप जब स्टेटमेंट में या फ्रेज़ में या क्लॉज में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उसके एंड पे आपने ये क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है. बट वन थिंग इज़ टू बी रिमेंबर्ड ओवर हेयर कि आपने देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन विच इज़ अ रिटोरिकल वन, और देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि किस में आप कहते हैं बॉय इज़ इट हॉट टुडे. नाउ दिस सीम्स लाइक अ क्वेश्चन बट इट इज़ंट. इट इज़ जस्ट कन्वेइंग द मैसेज इन अ मोर एम्फेसाइज्ड फॉर्म, इन अ मोर आई वुड से कैटेगोरिकल टोन. तो इधर आपको यूज़ करने के रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं कि आप रिटोरिकल क्वेश्चन आर वेरी यूज़फुल. दिस इज़ द सेम थिंग दैट आई हैव डिस्क्राइब कि उसमें आप अपनी राइटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं उससे लेके, लेकिन उसके एंड पे क्वेश्चन मार्क बिल्कुल भी नहीं आना. गुड हो गया. उसके बाद आएंगे आप किस पे आ जाते हैं जी, उस पर इसके बाद आती हैं पैरेंथेसिस आ जाती हैं या ब्रैकेट्स आ जाती हैं. समटाइम्स आपको ये होता है कि आपने किसी बुक से या किसी स्पीच से बहुत अच्छा आर्गूमेंट दिया, तो उसका सोर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि आपका जो आर्गूमेंट है इट इज़ अंडरगिर्डिंग द आर्गूमेंट दैट यू हैव जस्ट गिवन. लेकिन उसमें अच्छा होता है कि आप आर्गूमेंट देने के बाद पैरेंथेसिस के अंदर उसकी मतलब ऑथर का नेम लिख दें या ओरेटर का नेम लिख दें, और अगर सारा सोर्स प्रोवाइड कर दें कि आपने डॉन न्यूज़ से पढ़ा, न्यूज़ इंटरनेशनल से पढ़ा, फॉरेन अफेयर्स में पढ़ा या किस में पढ़ा, तो वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है. तो पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस यूज फॉर द related yet non-essential information considering the context in which you are writing. Okay, तो इसके बाद आ जाता है पैरेंथेसिस होगी कि नॉन एसेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है कि वो आपके आर्गूमेंट को सपोर्ट तो करती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. यू कैन मेक योर आर्गूमेंट विदाउट इट टू, लेकिन आप जस्ट उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आर्गूमेंट को उसके एंड पे लिख दें तो अच्छा होता है. उसके बाद हाइफन आ जाती है. हाइफन यू जस्ट what are they called, the compound words, or sometimes you make up your own words, quasi democratic, paramilitary, extrajudicial. इनके दरम्यान में हाइफन होती है. इट इज़ यूज फॉर टू लिंक टू वर्ड्स. बट द थिंग टू रिमेंबर वाइल यूजिंग हाइफन इज़ कि आप उसके दोनों साइड पे बिल्कुल स्पेसेस बिल्कुल नहीं रख सकते. स्पेस ना उसके स्टार्ट में होगी ना एंड पे होगी. इट इज़ जॉइनिंग द टू वर्ड, इट इज़ लाइक अ लिंक. ओके, सो before the link and after the link there is no need for a space. Okay, इसके बाद चलते हैं आपके पास exclamation marks की तरफ. Exclamation marks, as you know, it indicates some kind of an emotion is involved. It is often put at the end of the emotive phrases or the clauses, alas, aha,
हुर्रा, whenever you are happy or sad, it means it covers all kind of emotions. तो उसके एंड पे आपने exclamation marks लिखना होता है. Sometimes it is also used to force something. For example, if a teacher is saying and you have to say the class is being very noisy, and the teacher would say listen. Now this listen is not the listen after which you put a comma. इस listen के एंड पे आप exclamation marks लगाएंगे. Okay, stay quiet, you will use an exclamation because it is said rather in a very authoritative manner. Okay, तो exclamation marks हो गए आपके पास. इसके बाद आ जाते हैं आपके पास quotation marks. quotation marks आपके पास इंडिकेट करते हैं कि कोई आपके पास डायरेक्ट नरेशन यूज़ हो रही है. डायरेक्ट नरेशन इज़ टू कम ही सेड and then you will quote the exact words. Now the thing to remember about the quotation marks is that you have to write the exact words that are given. If you are using it in some kind of a excerpt form, if you are writing an excerpt from some kind of a book, तो आप जब लिखेंगे तो उसमें जो पैराग्राफ जो लाइंस होंगी, you have to write them verbatim. Okay, you have to write them exactly word by word. You cannot paraphrase it. Paraphrase करना हो तो उसके स्टार्ट में आपने लिख देना है in similar words, in the essence of the saying was, the essence of the writing was, in this manner. quotation marks में आप डायरेक्ट नरेशन आ गया आपके पास. आप किसी वर्ड को एक राइटिंग में से अलहदा एम्फेसाइज करने के लिए भी quotation marks को यूज़ कर सकते हैं. उसमें क्या होता है कि आप उस वर्ड को हाईलाइट करते हैं ताकि वो जो रीडर है उसकी अटेंशन को ग्रैब कर सके. ये दूसरा यूज़ हो गया. थर्ड हो गया आपके पास क्वेश्चन मार्क्स में आपके पास आते हैं कि द इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेंबर ओवर है कि पीरियड जो है, पीरियड फुल एंड क्वेश्चन मार्क, दे शुड ऑलवेज बी विद इन द क्वेश्चन मार्क्स वाइल यू आर एनक्लोजिंग दैम. जब क्लोज करने लगे तो आपके पास क्वेश्चन मार्क भी पहले आएगा और फुल स्टॉप भी पहले आएगा. उसके बाद आप जो है ना कोटेशन मार्क्स के जो है ना क्लोजिंग वाले वो यूज़ करेंगे. नाउ देयर इज़ अनदर थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन मार्क quotation marks. quotation marks में ये है कि आप sometimes you see single quotation marks. Single quotation marks sometimes indicate some kind of an added emphasis. Added emphasis के अलावा भी आपके पास होता है कि you are indicating to the reader that you are not using the word in the exact meanings that is supposed to be related to that word. As you may have read in the writings on the Israel-Palestine issue, there would be writing where the writer would put Israel's self-defense. उस self defense को वो single quotation में लिखेगा. Now here the self defense is not written in the sense that it is supposed to know. It means Israel is behaving aggressively towards the Palestine. So this is the use for the single quotation mark. Often when you are writing in a direct narration, तो उसमें आपको डायरेक्ट कोटेशन मार्क्स के अंदर भी कभी कभी कुछ एक अलहदा वर्ड होता है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं या यूज़ करना चाहते हैं, या कोई बुक का टाइटल या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है तो कोटेशन विद इन कोटेशन जो है ना वो आपके पास सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ आ सकती है. सो दिस वाज द यूज़ फॉर द सिंगल कोटेशन मार्क्स. ओके, नाउ कम टू अनदर पंक्चुएशन मार्क विच इज़ द कॉलन. नाउ कॉलन इज़ समथिंग it indicates the end of a main clause and independent clause. And another use for the colon is that you are using it while you are writing the book title, and you are supposed to write the subtitle as well. Then you will use a colon before that, colon after the title and before the sub description that you are going to give. So this was the use for the colon. Now comes the semicolon. Semicolon is often used to, I would say, it has a, I would say, some kind of emphasis, but equal emphasis. You cannot put more stress in some kind of a list कि आप किसी बुक्स की लिस्ट दे रहे हैं, कोई इंसिडेंट्स ऐसे हैं जिनकी लिस्ट दे रहे हैं, तो उनके दरम्यान जब आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास इक्वल एम्फेसिस की एक टोन जाएगी. ओके हो गया. सेमीकोलन का ये यूज़ हो गया. सेमीकोलन में एक चीज़ याद रखनी है कि इसका जो ऑडिबल पॉज होता है वो आपके पास पीरियड से कम होता है लेकिन कॉमा से ज़्यादा होता है. सो दिस थिंग शुड ऑलवेज बी केप्ट इन माइंड. समटाइम देयर इज़ अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग जिसमें आप सेमीकोलन को इन्वर्जन टाइप आर्ग्यूमेंट के लिए यूज़ करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट होता है सेमीकोलन से पहले उसमें एक आर्ग्यूमेंट होता है, फिर उसी के एग्जैक्ट कोरोलरी जो है ना वो आप सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन करते हैं, तो उसके दरमियान भी आप सेमीकोलन को यूज़ कर सकते हैं. दिस वाज द सेमीकोलन. आई थिंक
And last but not the least, the commas. Commas are very important. कॉमाज में आपके पास जो नरेशन CSS में गिवन होती है उसमें आपको कॉमा का बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है. उसमें डायरेक्ट नरेशन में ऐसे होता है कि डायरेक्ट नरेशन का सिर्फ एक वर्ड होता है, उसके बाद वो जो स्पीकर होता है वो लिसनर को जो है ना एड्रेस कर रहा होता है कि माई फ्रेंड और माई कॉलीग लाइक दिस, एंड दैट माई फ्रेंड और कॉलीग शुड ऑलवेज इज़ ऑलवेज सपोज टू बी इन द कॉमा, इन बिटवीन द कॉमास. तो उसके लिए ये है कि आप कॉमर्स के यूज़ को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है. ये प्रैक्टिस के अलावा ये नहीं हो सकता. तो कॉमर्स में ये है कि आपके पास लिस्ट को करने के लिए, लिस्ट में एक ऑडिबल पॉज देने के लिए कि इफ़ देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सिमिलर थिंग्स, कि आप कहने लगें कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू मैनी फैक्टर्स इन पाकिस्तान लाइक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड विमेन इशूज़ एंड लेबर इशूज़ आई थिंक लाइक दैट. तो इनके दरमियान में आप सेमी कॉमा को यूज़ कर सकते हैं. एक यूज़ हो गया गामा का. अनदर यूज़ फॉर द गामाज इज़ कि आप नॉन एसेंशियल फ्रेजेस को जो है ना वो अपने मेन आर्ग्यूमेंट से सेपरेट करने के लिए उसको गामास को यूज़ कर सकते हैं. लाइक व्हेन यू आर स्पीकिंग फॉर योर अबाउट योर फ्रेंड हु हैज़ गॉन ऑन अ ट्रिप, यू वुड से माई फ्रेंड अली हु हैज़ गॉन ऑन अ ट्रिप टू नॉर्दर्न एरियाज. अब जो अली है इट इज़ नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन. तो इस अली वर्ड को, आप अली नेम को कॉमर्स में आप जो है ना कॉमर्स के अंदर लिखेंगे. कॉमर्स के अंदर लिखेंगे तो उसमें इसका मतलब ये होता है कि इवन इफ़ यू रिमूव द इंफॉर्मेशन गिवन इन बिटवीन दोज टू कॉमर्स, स्टिल द सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस. कॉमर्स में को इस तरह यूज़ कर सकते हैं. नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को आप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. थर्ड रूल फॉर द कॉमर्स इज़ कि थर्ड यूज़ ये है कि आप व्हेन एवर यू आर राइटिंग द डिपेंडेंट क्लॉज before writing the independent class, then you will always use a comma before that, after the dependent class and before the independent class. Sometimes you will see some sentence starting off with the owing to or despite and of. So it means that the writer is trying to start the sentence with the dependent class. तो उस dependent class के बाद हमेशा आपके पास एक comma आएगा. But the thing to kept in mind here is कि देयर इज़ एन एक्सेप्शन टू दिस रूल कि जब आप कंजंक्शन को यूज़ करेंगे दैन देयर इज़ नो नीड फॉर अ गामा. ओके, कंजंक्शन मीन एंड और बिकॉज, then there is no need for the comma even if you are starting with the dependent class. So this should always be kept in mind. So I hope you learned something from this this video. I have almost talked about I have put more stress on the marks that punctuation mark that will be useful to you for the CSS punctuation question, and I have put less importance on the one that are not very useful. So आइए अब इसके, मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि हम एक एग्जांपल भी जो है ना इसके एंड पे करेंगे. तो आइए अब उस एग्जांपल की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस हद तक हमने सीखा है इन चीज़ों को. So guys, here is an example that I have copied from the previous CSS Pressy paper. I think it is of 2017 I guess. तो ये 2017 में आई थी. तो इसको आए पंक्चुएट करते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस, मैंने फर्स्ट लेटर आपको कहा था कि सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटल होना चाहिए, तो ये कैपिटल आ जाएगा क्विकर. नाउ वाज वन डे वॉकिंग में जो है ना दिस वन डे, ये नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है. नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या मतलब है कि अगर आप इसे रिमूव भी कर दें तो आपकी जो है वो सेंटेंस कंप्लीट है. जस्ट रीड इट विदाउट बिफोर डिस्कार्डिंग इट और पुटिंग एनी कॉमास बिफोर एंड आफ्टर. इसमें आप क्विकर was walking on a country road. Sentence is still complete, or you can take it on the start of the sentence. One day a quaker was walking. One day, जब उधर वन डे आप लिखेंगे तो उसके वन डे के बाद सिंगल के बाद आपके पास एक कॉमा आएगा. तो हम इसी जगह प्लेस कर देते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी ज़्यादा प्लेसेस को चेंज करें या इतने ज़्यादा उसके सेंटेंसेस में आप डीपली जाएं. तो जो जितना आप बच सकते हैं उतना बचें. रोड, ये रोड तक आपके पास एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसकी सेंस कंप्लीट है. क्विकर वाज वन डे वॉकिंग ऑन अ कंट्री रोड. अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है तो इसका फर्स्ट वर्ड जो है वो ऑब्वियसली कैपिटल होगा. ही वाज सडनली मेट बाय अ हाईवे मैन पॉइंटिंग अ पिस्टल.
ओके नाउ अब हाईवेमैन की आगे वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक्सक्लेमेशन में हाईवेमैन के बाद क्या है कि पॉइंटिंग अप पिस्टल। तो इसको आप बेशक इसे भी आप एक क्लॉज अलहदा बना दें, इधर एक आप पॉज देंगे, ही वॉज सडनली मेट बाय हाईवेमैन पॉइंटिंग अ पिस्टल। अब चूंकि आपको पता चल गया कि ही वॉज पॉइंटिंग अ पिस्टल, तो ये नेक्स्ट सेंटेंस का स्टार्ट हो सकता है द रॉबर वाल एक्सक्लेम्ड। तो ये इधर आपके पास एक पीरियड आ जाएगा, ठीक हो गया। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस का स्टार्ट है, तो इधर आपके पास टी कैपिटल आ जाएगा। नाउ हियर गाइस रिमेंबर एक्सक्लेमेंट जो है ना, ये आपके पास एक इमोटिव अटरिंग है, इसमें आपके पास इमोशंस आ रहे हैं, बिकॉज ही वॉज इन अ थ्रेटनिंग काइंड ऑफ अ वे, इट वॉज सेड इन अ थ्रेटनिंग वे। तो इसमें एक्सक्लेम के बाद चूँकि डायरेक्ट नरेशन है, तो आप इधर पहले आपके पास कॉमा आएगा, फिर आपके पास ये डायरेक्ट नरेशन स्टार्ट हो रही है, तो आपके पास ओपनिंग कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे, योर मनी और योर लाइफ। ओके, हेयर यू विल यूज़ अ exclamation mark because we have been given a clue by the word exclaim। और इधर आपने वो याद रखना है कि जो रूल मैंने बताया कि क्वेश्चन मार्क्स और पीरियड, दूसरे कोई भी मार्क्स जो विच कम्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, वो कोटेशन मार्क्स के अंदर आएगा, उसके बाहर आपने नहीं लिखना। तो ये लाइन कंप्लीट होगी आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास अलहदा लाइन है, तो आप इसका वर्ड जो है पहला कैपिटल करेंगे, माई फ्रेंड। नाउ दिस इज़ अनदर नरेशन, हेयर इज़ द ट्रिक कि वो आपके पास सेट द क्वेकर। नाउ सेट द क्वेकर जो है ये आपके पास इनडायरेक्ट नरेशन है, जैसे आप स्टार्ट करते हैं माई फ्रेंड सेड और थिंग लाइक दैट। तो ये माई फ्रेंड जो है ना, वो अब क्वेकर उसको रिप्लाई कर रहा है, वो जो रॉबर है उसको रिप्लाई कर रहा है। तो ये माई फ्रेंड जो है ना, इट विल आल्सो कम इन बिटवीन द quotation mark, but before that since there is an interruption in the direct narration, तो इधर आप एक कॉमा भी यूज़ करेंगे कि इधर आप सिर्फ कॉमा यूज़ करेंगे टू इंडिकेट कि अभी तक ये चीज़ जारी है, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। अब सेट द क्विकर जो है ये मीन्स कि आपके पास इनडायरेक्ट नरेशन है कि वो नरेट कर रहा है, इसको आप कॉमास में लिखेंगे। अब आई जो है सिंपल वाला है, ये आपको पता है हमेशा कैपिटल आता है, ये कभी भी दूसरी फॉर्म में नहीं आता। नाउ दिस आई कैन नॉट डिलीवर माई मनी फॉर आई शुड बी हेल्पिंग द इन एवल जोइंग, ये अब उसी कंटिन्यूएशन है। माई फ्रेंड अब क्वेकर कह रहा है उसको, जो रॉबर है उसको, तो इधर आप फिर कोटेशन मार्क्स यूज़ करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट नरेशन चल रही है। दी जो है जो ओल्ड फैशन वर्ड है, इधर आप यू भी यूज़ कर सकते हैं, तो अपनी आसानी के लिए आप बेशक इसे इधर यू लिख लें। आई शुड बी हेल्पिंग यू इन एवल डूइंग। अब इधर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो इधर आपके पास पीरियड आ गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस का स्टार्ट है, तो इधर आपके पास कैपिटल वर्ड आ जाएगा। और ये एक कंजंक्शन है, तो इसके बाद आप कॉमा यूज़ करेंगे, हाउ एवर, मोर ओवर, फर्दर मोर। इसके बाद हमेशा आप पॉज लेते हैं ताकि रीडर को पता चल जाए कि इसकी अपोजिशन होने लगी है, ये इसकी सेटिस्फैक्शन होने लगी, व्हाट वाज सेड बिफोर। However, exchange is lawful and I is still in the small letter, so you will capitalize it. I will give दी को आप फिर इधर यू कर लें ताकि ईजियर रहे आपके लिए। I will give you my purse for the pistol. Now here is the completion of the direct narration from the Quaker. So you will put a period and after that close quotation mark. Now there is the next start of the next sentence. Here you will use the capital D. The robber agreed on receiving the purse. Now this is a complete independent clause, you do not have to do anything, you just put a period at the end of the sentence. Now there it is again, the start of a new sentence. The Quaker at once held the pistol at the robber's head. Robber's head इधर apostrophe आती है, apostrophe means कि it indicates either a possession or an omission. ओमिशन में क्या होता है कि आप समटाइम्स लिखते हैं इट्स, जो इट्स है, इट्स के बाद अगर आप कॉमा लगा के एस लगाते हैं इट मीन्स इट इज़। और समटाइम पीपल विल यूज़ आई अपॉस्ट्रॉफी डी, इट मीन्स आइदर आई वुड और आइदर आई हैड। ठीक है, तो जो अपॉस्ट्रॉफी है ये आपके पास ओमिशन को या पोजेशन को शो करती है। तो सिंस इट इज़ द रॉबर्स हैड, सो वी विल यूज़ एन अपॉस्ट्रॉफी ओवर हियर। The Quaker at once held the pistol at the robber's head.
Now there is another clause that is being joined with this clause, लेकिन चूँकि इधर we have used a conjunction and, so there is no need for a comma, as I have told you that there is an exception to the use of comma. वो exception आपके पास इधर ये and में आ गई. Now after the said, there is again a direct narration from the quaker towards the robber. So after the said you will put a comma, and for now you will start the quotation marks before that. Now friend, give me back my purse. पर्स बैक और द वेपन में गो ऑफ, इधर इस बैक को आप डिलीट कर दें, और द वेपन में गो ऑफ. नाउ हेयर इज़ द एंड ऑफ दैट डायरेक्ट नरेशन. ऑफ तक आपके पास एक डायरेक्ट नरेशन हो गई. नाउ इन रिप्लाई टू दैट थ्रेट बाय द क्विकर, अब रॉबर कह रहा है फायर. अब नाउ दिस इज द स्टार्ट ऑफ अनदर डायरेक्ट नरेशन. सो इस फायर का आपके पास कैपिटल एफ आएगा, और इधर आपके पास स्टार्ट में आपके पास कोटेशन मार्क आएगा फायर कॉमा, नॉट हियर, आफ्टर द फायर here comma said the robber कह रहा है. now again there is a narration, there is no powder in the pistol. So this is the end, there is a period, and there you go. Now guys, did you see how easy it was once you get to know the rules, the ways these things work? So I hope कि आपने इस चीज़ से कुछ सीखा होगा और इस एग्जांपल से भी आपको further clarification होगी. Hope you learned something from this video, and if you did, please like this video and comment down the suggestion if you want another some kind of a new topic on which you want me to make a new video. तो सब्सक्राइब करने को, फीस करने को for more videos like this. Until next time, bye bye.